नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic null values and partial information. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब होता है कहीं पे जो डेटाबेस होता है वहाँ पे हमारे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड द नल वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉमन इशू होता है। ओके, जो कभी कभी जैसे कभी कोई चीज़ होती है, नाम के आगे सैलरी, सैलरी अगर ब्लैंक छूट गया हमें समझ नहीं आता है इसको कैसे करें, तो या फिर कहीं कहीं भी आपने देखा हो कंस्टेंट लगा देते हैं। आप कुछ फॉर्म्स भरते हो तो वहाँ पे देखा होगा कि दिस वैल्यू शुड नॉट बी नल, क्योंकि जब तक आप उसको नल नहीं मीन्स इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू fill that field. Okay, so because if until and unless you are not fill that field, your form will not be saved. If it is optional then it's okay, it is up to you whether you would like to share this information or not, means write this information or not. Okay, so in most of our beginning lessons we have assumed that all tables contain data, सभी में जैसे डेटा होता है, बट SQL treated missing values differently. लेकिन SQL जो होता है that is structured query language, वो इन missing value को दूसरे तरीके से देखता है, and it is important to determine to understand how missing values are used and their effects on queries and calculations. सो जो डेटाबेस टेबल है उसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कस्टमर टेबल आप देख रहे हो, ठीक है, नेम है, सिटी है, स्टेट, एज एंड सेक्स। ठीक है, ये क्या पे हर रो एंड कॉलम विल कंटेन अ डेटा, बट देयर केसेस वेयर इट मेक्स सेंस फॉर सम कॉलम्स टू नॉट कंटेन अ वैल्यू। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे भी वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे भी वैल्यू मिसिंग है। सो कंसीडर द कस्टमर टेबल, several columns containing missing or unknown values. The reason why this can happen include a value is, so the missing means perhaps a customer such as you doesn't divulge her age to your customer service representatives. And unknown means an employee termination date is usually some event in the foreseen future. Doesn't apply means if the customer is a business then sex doesn't apply. So for this, if you are talking about the null value in comparison, so when it isn't possible to specially code your data using NA, you can use the special keyword null to denote a missing value. Null is tricky. So null isn't a value in the normal sense. For instance, no two values are equal to each other. Surprisingly, null equals to null is false. Okay, so this SQL covers this dilemma, though you can use the is null and is not null comparison to text of null values. Like for example, here this is the query. You see here, this is the product ID. In this product ID, name and color. From which table? Production dot product. Okay, जहाँ पे कलर क्या होगा is null, मीन्स कलर उसमें स्पेसिफाई नहीं किया था, ऐसे हम क्वेरी इसको लिखेंगे। ये क्या रिटर्न करेगा? ऑल प्रोडक्ट्स, जिनका उन सभी प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा जिनका कलर मिसिंग होगा। जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट ID, नेम, कलर फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेयर कलर इज नॉट नल, और जिसका कलर नॉट नल होगा, यहाँ पे हमने नल लिखा था और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? नॉट नल लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो नल in expression means, as you can expect, null have an adverse effect in expression. जैसे null denotes an undefined value. His participation in most expressions rendered the expression unknown or null as well. So check out the following arithmetic expression. The first line evaluates to the number of others to null. Okay, so
दिस G20 आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं, यहाँ पे अगर नल आ गया, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे नल ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम कुछ रिजल्ट ही यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हैप्पी प्लस हॉलीडेज इक्वल, अगर यहाँ पे ये आ गया तो हमें समझ नहीं आएगा, तो इसे हम ना चाहते हुए नल लिखना पड़ेगा। सो ट्राई रनिंग द फॉलोइंग क्वेरी इन एडवेंचर वर्क दिस डेटाबेस, ओके। ऐसे हम इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे कलर को शो नहीं कर रहा है, तो फिर अब आपने नोटिस किया कि जो ब्लैक चर्निंग है और नल, ठीक है, यू मे एक्सपेक्ट टू सी जस्ट द प्रोडक्ट नेम इफ द कलर इज मिसिंग, बट सिंस द कलर इज नल द एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नल, ओके। So without help it would be though to create expressions as the null would ruin most results. So in this case you can use the SQL Colson's function to assist. This function will return the first null value from list of parameters. एग्जाम्पल जैसे पैरामीटर आ गया आपके ये, सो इसमें क्या ए पैरामीटर बी पैरामीटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दिस रिटर्न ए सिंस इट इज़ द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू फाउंड, ठीक है। अब ये इम्प्रूव एसक्यूएल स्टेटमेंट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये जब आप रन कराएंगे तब आपको पता चलेगा, तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट उसको कर पाओगे। अब हम आते हैं नल वैल्यूज इन वेयर क्लास। वेयर क्लास होता है जिसमें नल वैल्यू क्या, तो वेयर का मतलब क्या हो गया कि वेयर क्लास इज यूज टू लिमिट द रोज रिटर्न फ्रॉम अ क्वेरी। जनरली ओनली rows meeting the where clause are returned. Rows whose where clause evaluates to false are removed from the results. So in similar fashion, if the where clause evaluates to null, the row is eliminated. यहाँ पे देखेंगे जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी है, नेम कलर है, फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे वेयर दिस इज लेस देन 100, आप ये क्या करेगा, उन रो को रिटर्न करेगा जिसका कलर स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब एलियन इज अ फंक्शन दैट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स लेंथ से यहाँ पे मतलब है, जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिनकी वैल्यू ब्लैक होगी, जो 5 रिटर्न करेगा। सिंस दिस इज लेस देन 100, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा है, वेयर एलियन कलर लेस देन 100 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस नल इज लेस देन 100 इज ऑलवेज फॉल्स, सो द रो इज रिमूव फ्रॉम द रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि नल इन बूलियन एक्सप्रेशंस, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। क्योंकि नल रिप्रेजेंट्स अ मिसिंग और अननोन वैल्यू and its effect on Boolean expression is curious in status, as an unknown value puts a spin on the outcome. I think the result for and or what you would expect, but the result you would expect or for or not in many cases when a value is unknown. So the uncertainty of the value translate through the expression. यहाँ पे देखते हैं कि बूलियन एंड ऑपरेटर, कंडीशन ए कंडीशन बी, रिजल्ट क्या हो गया, ये ट्रू है फॉल्स है, एंड ऑपरेशन मीन्स दोनों ही ट्रू होने चाहिए या दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, तभी वो चीज़ होगी, ठीक है। अगर चेंज होगा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ट्रू और फॉल्स देखोगे तो फॉल्स ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू नल है तो नल हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे ही सेम फॉर और, ठीक है। अब हम देखते हैं बूलियन और मीन्स आइदर दिस और दिस सेटिस्फाई होगा तो हमारा रिजल्ट ये आएगा, ये ट्रू हो या ये फॉल्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रू है, ठीक है। अब जैसे ये दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स करना ही पड़ेगा। अब ये है फॉल्स, ये हो या कोई भी एक ट्रू हो तो हम ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है। So you will see that in every case one of the condition is true, so in the end of the result this is even the case when the other
input is null. So all that matters is one input into the other input, albeit unknown is irrelevant. So this is all about null values and partial information. This session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.